پاکستان کے سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک ملک اب اسرائیل کا سب سے اچھا دوست بن رہا ہے۔ ہم کبھی شیخ زید کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، لیکن اب اچانک ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انبن ہو رہی ہے۔ کیا ہمارا UAE سے کوئی جھگڑا ہے؟ وہ ملک جو کٹر مذہبی روایات رکھتا ہے وہ اب اسرائیل کو کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ پاکستان گوادر پورٹ بنا کر دبئی کو ڈبونا چاہتا ہو؟ سوال تو بہت سے ہیں، آئیں ان کے جواب جانتے ہیں۔ میں ہوں نعمان عابد۔ تیل کی دریافت سے پہلے دبئی کے لوگوں کا پیشہ تجارت ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، اس لیے انہیں گھومنے کا بھی بہت شوق ہے، کیونکہ تجارت کی غرض سے انہیں ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا۔ سفر میں ہی ان عربوں نے اسلام کو بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں جاتے اپنی تبلیغ کرتے اور ایسے بہت تیزی سے اسلام ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا۔ جنوبی ایشیا یعنی ہمارے اس علاقے میں اسلام 7ویں صدی میں داخل ہوا، جب عربوں نے چین کا سفر کرتے ہوئے ہمارے ساحلی علاقوں میں قیام کرنا شروع کر دیا۔ عرب لوگ ریشم یعنی سلک کی تجارت کرنے چین جایا کرتے تھے اور راستے میں سٹاپ اوور ہوتا تھا بھارت میں سٹاپ تو ہوتا ہی تھا، اس لیے یہاں سے مسالوں اور کاٹن وغیرہ کی تجارت بھی شروع کر دی۔ سب سے پہلے عرب لوگ مالابار پہنچے اور وہاں پر اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ تجارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ خطے میں اسلام بھی پھیلتا گیا اور سب سے پہلی مسجد کیرلا کے علاقے میں 629 عیسوی میں بنی۔ اس مسجد کا نام چرامن جمعہ مسجد تھا، جو وہاں کے سب سے پہلے مسلمان چرامن روی ورما نے بنوائی تھی۔ اس وقت تقریباً سارے ایشیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی اور اس جیسے اور علاقوں میں تاجروں نے اسلام اتنی تیزی سے پھیلایا کہ آج بھی یہاں پر کئی مسلم میجارٹی والے ممالک ہیں۔ انڈونیشیا کے جزائر سماٹرا میں مسلمان تاجروں کی آمد کے بعد یہاں کے سرداروں نے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس علاقے میں اسلام کے بیج بھی بو دیے تھے۔ تجارت کی غرض سے آنے والے عرب لوگ اس سارے علاقے سے آتے تھے جو آج سعودیہ عرب، دبئی اور دیگر عرب ممالک کے نام سے مشہور ہیں۔ آج کا UAE 7 امارات پر مشتمل فیڈریشن ہے اور لفظ اسٹیٹ کا عربی ترجمہ امارت ہے۔ یہ ریاستیں برطانیہ کے قبضے میں تھیں، جنہیں بعد میں خود ہی برطانیہ نے آزاد کر دیا۔ ان ریاستوں کے شیوخ یعنی راجاؤں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ٹروس ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، اس لیے ان اسٹیٹس کو ٹروسیل اسٹیٹس بھی کہا جاتا تھا۔ 1971 میں برطانیہ نے ٹروسیل اسٹیٹس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ابوظہبی کے شیخ زید بن سلطان نے باقی چھوٹی ریاستوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس بات پر منا لیا کہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانے سے بہتر ہے ایک ملک بنا لیا جائے۔ 5 ریاستیں تو فوراً مان گئی، ایک ریاست اگلے سال UAE میں شامل ہوئی اور ایسے 1971 میں ملک قائم ہوا اور 1972 میں وہ نقشہ بن گیا جسے آج متحدہ عرب امارات کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان نے اس وقت UAE کی فارمیشن کے لیے ڈپلومیٹک لیول پر بڑی گرم جوشی دکھائی تھی، کیونکہ پاکستان کو ایک اور آزاد مسلم ملک بننے پر بہت خوشی تھی۔ ابھی پاکستان کا مسلم امہ والا خواب زندہ تھا، جب پاکستان سمجھتا تھا کہ تمام مسلمان ملک آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب UAE فارم ہو رہا تھا تو پاکستان نے مشورہ دیا تھا کہ UAE، بحرین اور قطر کو بھی اپنے ساتھ ملائے، لیکن نہ جانے کیوں عربوں کا یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ 1971 میں UAE کے فارم ہوتے ہی پاکستان کے ساتھ باقاعدہ تعلقات شروع ہو گئے۔ جب UAE کے بانی اور پہلے رئیس شیخ زید نے پاکستان کے متعدد دورے کیے اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا۔ 1974 میں پاکستان نے بہت کوشش کر کے ایک بہت بڑا اسلامک سمٹ کروایا اور خواب یہی تھا کہ مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کی طاقت بنے، جیسے یورپین یونین ہے۔ پاکستان کا بھی اسی طرح کی ایک تنظیم بنانے کا خواب تھا۔ یہ کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، بہت بڑی کانفرنس تھی، ساری اسلامی دنیا کے سربراہ لاہور آئے تھے۔ تب پاکستان میں شیخ زید بھی اہم مہمان بن کر لاہور آئے تھے۔ اس موقع پر یادگاری سکے اور ڈاک ٹکٹ بھی جاری ہوئے تھے۔ اگلے 20 سال تک پاکستان اور UAE کے ریلیشنز بہت بہتر ہوتے گئے۔ UAE کے پاس لیکوڈ گول یعنی پیٹرول تھا اور اس سے بہت سا پیسہ آ رہا تھا، جس سے وہ پاکستان کی بھی مدد کر رہا تھا، اور دوسری طرف UAE کا پورا ملک پاکستان نے ہی اسٹیبلش کیا تھا۔ 1985 میں PIA نے UAE کی پہلی ایئر لائن ایمریٹس کے لیے ساری ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی تھی، ایڈمن سے لے کے انجینئرنگ تک سب PIA کے سٹاف نے کیا۔ پاکستان نے ایمریٹس کو 2 جہاز بھی دیے تھے۔ بدلے میں خیر سگالی کے طور پر ایمریٹس کی پہلی فلائٹ کراچی میں اتری۔
यूएई के फौजियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान करता था। यूएई एयर फोर्स के पहले एयर चीफ एयर कमोडोर अयाज अहमद खान थे। इनके अलावा 4 पाकिस्तानियों को यूएई एयर फोर्स का चीफ होने का एजाज़ हासिल है। इंजीनियरिंग, डिफेंस, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में पाकिस्तान ने ही शुरू में यूएई को एक तरह से चलना सिखाया। और ऐसा नहीं है कि यूएई ने बदले में कुछ नहीं किया। शेख ज़ायद हस्पताल को ही देख ले, सैलाब और ज़लज़ले के दिनों में यूएई की इमदाद को देख ले, या $3 अरब की इमदाद जो इमरान खान हुकूमत के लिए मंजूर की गई थी। शायद यूएई ने पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल काम किया था, और वो ये था कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना। जब पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ 1990s में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो सारी दुनिया इनके ख़िलाफ़ थी, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पर इस हुकूमत को माना। उस वक्त दुनिया में यही 3 मुल्क थे जिन्होंने इस हुकूमत को इखलाकी और कानूनी हैसियत दी थी। सवात की वादी से यूएई को ख़ास मोहब्बत है। सिर्फ सवात में साफ़ पानी, ब्रिज, हस्पताल और तालीम के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। यूएई पाकिस्तान के मेन ट्रेड पार्टनर्स में से भी एक है। 2014 में दोनों मुल्कों की ट्रेड $9 बिलियन थी। और ये तो अभी कल की बात है। जब 2019 में पाकिस्तान चाहता था कि IMF से कर्जा ना ले, तब सऊदी अरब की सिफारिश पर यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम किया था, वो भी आसान शराइत पर। इस वक्त यूएई में तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, जो यूएई की टोटल आबादी का 20% हैं। पाकिस्तान में जब ये रेमिटेंस भेजते हैं तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है। कुछ अर्सा से यूएई पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती चला रहा था, लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ इस तरह की दोस्ती बना ली जैसे कभी पाकिस्तान के साथ हुआ करती थी। जाहिर सी बात है, भारत एक बड़ी मार्केट है और भारत की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है यूएई में, और यूएई की बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत में। इसलिए पाकिस्तान ने कभी इस बात पर गुस्सा नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर अपने अंदर जम करके इसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। पीछे पीछे यूएई ने अपने मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मोदी साहब को दे दिया। ये बात पाकिस्तान को हज़म नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान ने एक सख्त स्टांस लिया। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि यूएई ये समझता है कि मुसलमान ममालिक को आपस में बने रहना चाहिए, और ख़ुद यूएई को भी कभी ना कभी डिफेंस के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़नी है। यमन में लड़ने वाले हवसी बागी कभी भी यूएई का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सख्त बयानात देकर सऊदियों और अमारात को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूएई तो इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर रहा था। तो बस बात वाज़िया हो गई कि यूएई ने अपने आप को मगरिब के साथ अलाइन कर लिया है, क्योंकि तेल का पैसा तो ख़त्म हो रहा है और तेल के अलावा अरबों के पास है ही क्या। इसलिए अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती करना यूएई के लिए मजबूरी बन गई थी। यूएई में रहने वाले पाकिस्तान भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। वहाँ पर कफ़ालत का निज़ाम होने के बायस पाकिस्तानी ना तो वहाँ पर कोई जायदाद ख़रीद सकते हैं और ना ही उन्हें वहाँ की शहरियत मिलती है। यूरोप वाले तो हमें बराबर के शहरी बना लेते हैं और बराबर के हुकूक दे देते हैं, लेकिन एक मुसलमान भाई ऐसा नहीं करता। अगर यूएई में कोई पाकिस्तानी गिरफ़्तार हो जाए तो उसे वकील मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। कोरोना की वजह से क्योंकि इकानमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, इसलिए यूएई ने पाकिस्तानियों को वापस भेजना शुरू कर दिया। यूएई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेज़बान का किरदार अदा करता है, और फिर चाहे वो PSL हो या फिर कोई मैच सीरीज़, यूएई के स्टेडियम पाकिस्तान के लिए हमेशा खुले रहते हैं। शारजा स्टेडियम तो वैसे भी हमारे जहनों से निकलता ही नहीं है, और निकलेगा भी कैसे। यहाँ पर जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मिनी वर्ल्ड कप हराया था। जिसने वो मैच देखा हुआ है वो कहता है कि इससे बड़ा मैच दोबारा कभी हुआ ही नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान की लगातार शारजा में एक के बाद एक जीत है। पाकिस्तान के मर्द अव्वल आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान इमरान खान को शारजा कप जीतने पर कप दिया था। मशहूर है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान इतनी दफ़ा शारजा कप जीत चुका था। जब से ये कप ख़त्म हुआ है तब से शारजा स्टेडियम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन आज भी ज़्यादा वनडे मैचेस होस्ट करने का रिकॉर्ड शारजा स्टेडियम के पास ही है। गवादर और दुबई पोर्ट में से कौन सी बेहतर है, ये बहस तो बहुत देर से चलती आ रही है, और इस बहस को CPEC मंसूबे ने एक नई शक्ल दे दी है। सवाल ये है, क्या गवादर और दुबई का आपस में मुआवजा किया जा सकता है? तो आएँ देखते हैं।
फौरी तौर पर दुबई को गवादर से कोई ख़तरा नहीं, और वैसे भी दो मार्केट्स की मौजूदगी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। सिंगापुर और हांगकांग को ही देख लें। इतना ज़रूर है कि गवादर एशिया से यूरोप जाने वाले शिप्स के तकरीबन रास्ते में आता है, दुबई थोड़ा दूर है, और दूसरा गवादर एक डीप सी पोर्ट है, इसलिए बहुत बड़े जहाज़ भी यहाँ आ सकते हैं। दुबई में ऐसा नहीं है। लेकिन गवादर के होने से दुबई को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। गवादर तो अरबों के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, तो क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि पाकिस्तान और यूएई की बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती रही है और चल भी रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी टीम को चुन लिया है। पाकिस्तान चीन और रूस वाली टीम में है, अरब उठकर अमेरिका और यूरोप के साथ जा बैठे हैं। आज यूएई की फ़ौजियों की ट्रेनिंग भारत में हो रही है। भारतीय फ़ौज की परेड में मोहम्मद बिन ज़ैद मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, और ओआईसी इजलास में भारत को मेहमान ख़ुसूसी बनाया जा रहा है, और इससे बढ़कर यूएई इसराइल के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है। ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करके मुसलमानों में जलील हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का यही स्टाइल रहा है कि अपना काम निकालो और बाद में किक कराओ। चीन के साथ तो ये मसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीन खुद इस रीजन का मुल्क है, और रीजन के अगर हालात ख़राब होंगे तो चीन को भी मसला होगा। अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, उसे क्या मसला होगा। हमने अमेरिका से ठोकर खाई थी, अरब भी खा लेंगे और फिर सीखेंगे। बहरहाल आज पाकिस्तान की अरबों के साथ वो दोस्ती नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, और उम्मीद है अच्छा ही चलता रहेगा। आजकल हर मुल्क के आपस में कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, कोई जज्बाती मामला तो है नहीं, इसलिए दुश्मनी का तो सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान जैसे ही थोड़ी तरक्की करेगा, इस पुरानी दोस्ती में भी गर्मजोशी आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।